कैसे शुरू हुई और उससे Right. पहले भी आप Right. इससे पहले कहाँ थे, क्या कर रहे थे? Right. So first of all, thank you, Amrit, for having me over. So Amrit, I started my journey actually in the hotel industry. That's where I started out my journey 15 years back. I was working in the hospitality industry with ITC Moria in the sales and marketing team. From there, I got an opportunity to work with a brand called Xenia, and they were looking for someone to handle their tailoring division. I was with Xenia for a couple of years, and then I got an opportunity with Gucci. With Gucci, I was heading their entire tailoring and their custom made leather division. So वहाँ पे basically मुझे बहुत सीखने को मिला in terms of leather making, जूते कैसे बनते हैं, bags कैसे बनते हैं, construction कैसा है इन चीज़ों का, इनके back end में कैसे काम करते हैं, after sales में कैसे लोग काम करते हैं. तो मुझे काफ़ी traveling का भी opportunity मिला था Gucci के साथ. In fact, I traveled a lot to Italy and Dubai और factory के साथ उनके basically जो कारीगर होते इटालियन कारीगर उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया था. सो इट वाज अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रोफेशनल करियर आई वाज विद ब्रांड कॉल्ड बर्लूती. सो बर्लूती के साथ मैं उनका रिटेल ऑपरेशंस मैनेजर था. बेसिकली मेरा काम था सेटिंग अप द स्टोर इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. उनका लॉन्च था एंड बेसिकली रीचिंग आउट टू ऑल द क्लाइंट्स इन इंडिया. सो उनके साथ मैं 2 साल के लिए था. So total, I was working with these brands for close to about 15 years, and then I decided, it's time to take the plunge and do something of my own. So that's a little bit about my journey in the luxury industry. मगर ये जो आप बोल रहे हो ये this intuition ये कब मुझे ये करना था, that started out I would say 10 years into my journey कि मुझे लगा था कि it's time to do something of my own. ओके, अपना ये जो आपने जो क्रियारे जो शुरू किया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यहाँ से यहाँ बनाते हैं, उनको किस तरह से प्रोसेस क्या है उन चीज़ों का, प्लीज. राइट. सो खरियारे बेसिकली हमने जब हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली वी स्टार्टेड आउट एज अ कस्टम मेड शू ब्रांड. हम सारे कस्टम मेड शूज़ बनाते थे फॉर मेन एंड वी स्पेशलाइज्ड गुडियर एंड ब्लेक रैपिड कंस्ट्रक्शन में. ये बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में एंड वी वर वन ऑफ द फ्यू टू स्टार्ट दिस अबाउट 5-6 years बैक. फिर काम करते करते वी फाउंड आउट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स थे हमारे जो हमें बोलते थे हमारे पास एलवी, गुची को बहुत सारे ये लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं और ये रिपेयर या रिस्टोर करने के लिए कोई उनके पास कोई जगह नहीं थी देने के लिए. एंड ब्रांड्स के साथ क्या होता था, वो ब्रांड्स के पास चले जाते थे. The brands used to tell them, listen, you'll have to send it back to Italy or France or wherever, and they're going to take 3 months to 6 months. बहुत लंबा पीरियड था and clients didn't really want to wait for that. Plus there was a additional cost also involved in that. That's when we thought that there is a बहुत बड़ा gap है इस market में fill करने के लिए. फिर हमने सोचा let's try a hand in this and let's see how it goes from here. फिर हमने अपना restoration business हमने शुरू किया and वहाँ से it really took off. And while we were doing our restoration business, उसी process में हमें ये भी पता चला कि lots of clients are very interested in getting their bags personalized. जैसे आप initials, monogram, initials with stripes, artwork, बहुत सारे लोगों को ये करवाना था और इंडिया में बहुत लिमिटेड लोगों के पास ये नॉलेज थी करने के लिए, क्योंकि ये सारे जो बैग्स हैं बहुत एक्सपेंसिव बैग्स हैं एंड you need the best artists to be working on this. The paints also that we use are all imported. We use the same paints that Gucci, Goyard, all of these brands use. We obviously can't use local paints and dyes क्योंकि ये खराब हो सकता है products and we have to take utmost care of these products. So we hired the best artists in the country and it was a huge learning curve for us. We took about a year to develop the right way to hand paint on these products. तो 1 साल हमें लगा था कि this is the exact process we need to follow. Then we started taking orders and from there business has really flourished. Now it's been over 5 years since we've been doing this. We have clients not only from Delhi, we have clients all across India, from Bombay, Pune, Calcutta, Gujarat, you name the place, we have our clients. And the most interesting thing is that over the last couple of years, we've had a lot of international clients who've been sending us their products. So clients based out of UK,
We have a lot of clients in Germany. We have clients in Japan who are sending us their products. And it's quite interesting to know that they are choosing us as their preferred vendor rather than choosing their own, restoration providers in their own country. So हमें बहुत खुशी मिलती है कि we have lots of clients coming not just from India but also from overseas now. आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, लेदर ब्रांड हैं जो कि अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नए नए कई सारे ब्रांड आ रहे हैं मार्केट में। आप कैसे देखते हैं अपने ब्रांड को, उनसे ऊपर या फिर उनसे अलग कैसे बनाता है आपका क्रियारे? Right. So the way I would explain Criare is just a one line, is that we are a one-stop shop for all your leather needs. So we restore leather goods. मतलब restoration में हम क्या करते हैं, हम dry cleaning करते हैं, recoloration करते हैं, repair करते हैं, जूतों का काम करते हैं, bags, jackets, belts, you name the product, we work on it. Apart from that, we have a artwork division. So हमारे artists, initials, personalization, elaborate artwork, jackets, shoes, bags, सब पे artwork हम करते हैं. That's the second division. And a third division is a very interesting division जो I would say गिने चुने लोग इंडिया में कर रहे हैं, प्रॉब्ली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत कम लोग कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव अ कस्टम मेड बैग एंड शू डिवीजन। हम ऑफ द रैक प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, हम बेसिकली बिस्पोक लेदर गुड्स बनाते हैं। बाय बिस्पोक लेदर गुड्स आई मीन अगर आपको एक बैग बनवाना है, हम वो बैग खाली आपके लिए बनाएंगे और बिल्कुल कस्टमाइज करेंगे। हम आपका स्टाइल कस्टमाइज करेंगे, आपका हार्डवेयर, इनर लाइनिंग, आउटर लेदर, स्ट्रक्चर, सब कुछ 100% आपके लिए बनेगा वो बैग, और किसी के लिए नहीं बनेगा। सो जस्ट टू एक्सप्लेन इन अ लेमैन्स वर्ड, जैसे अगर आप सूट सिलवाने जाओगे किसी कारीगर के पास या कोई टेलर के, दर्जी के पास, वो आपके सारे बॉडी के मेजरमेंट्स लेगा और सूट बनवाएगा। इन द सेम वे वी ऑल्सो वर्क विद आवर लेदर गुड्स। वी विल मेक अ प्रोटोटाइप, हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, आप अप्रूव करोगे, आप चेंजेस बनाओगे प्रोटोटाइप में, फिर हम फाइनल प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर डूइंग दिस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ वी आर रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स इन इंडिया, राइट? तो जब आप इस तरह से इतने पैशनेटली जब काम करते हैं तो कई चीजें सामने आती है, कई बार कुछ हर्डल भी आते हैं सामने, और स्टार्टिंग में नो डाउट आपने कहीं ना कहीं वो फेस भी किया होगा। तो वो क्या टाइम था, वो फेस कैसा था जब आपके साथ में इस तरह के हर्डल्स आपने फेस किए? I think hurdles are a really, really important part, and it's a part and parcel of running a business. And unless you face those hurdles and challenges, you will not know how to overcome and find solutions for the problems in the future. So COVID, for example, was a very, very big hit for us. The biggest learning that we thought is that we learned from this is to expand our business into other avenues. So post COVID, we started working very closely with a lot of brands like Kapoor Watch Company, Panerai Watches. We've done events with a lot of brands as well, like Ferragamo. So we started taking a lot of corporate orders. We make custom made watch rolls. Say for example, a brand wants to develop 100 200 pieces custom made from us. We do that. We do a lot of high end corporate orders. जैसे top end management कोई corporate के साथ है, उनके gifting orders हम करवाते हैं. So that was a new avenue which we started exploring in COVID, and it really taught us that there's a huge market in this as well. So वो हमें बहुत बड़ी सीख मिली, and I think we've just grown out of it. यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे अब जी। एक प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा बात करेंगे हम डिजाइन के बारे में। ये जो हैंड पेंटिंग जो करते हैं वो क्या चीज़ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो हैंड पेंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से अभी मैं जब विजिट कर रहा था आपके जी तो मैं जी देख जी रहा था बिल्कुल कि वो उसमें क्रिएटिविटी भी है और साथ में एक माइनर जो वो चाहिए ना, ध्यान चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही है ना, एक लाइन है, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल वो वाला, तो वो उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो उस बारे में थोड़ा बात करेंगे हम कि वो किस तरह से, किस एंथुसियाज्म के साथ और किस क्रिएटिविटी के साथ किया जाता है। सो पहली बात जो हमारे हैंड पेंटिंग डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ऑल आवर आर्टिस्ट आर हाईली क्वालिफाइड। हम लोकल आर्टिस्ट तो ले नहीं सकते इन कामों के लिए। All of them are post grads in art, so they've done their bachelor's and then they've done their master's also in art.
ऑल ऑफ देम हैव अ मिनिमम ऑफ 10 years of experience. तो उन्होंने काम अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम किया. देन वी हैव हायर्ड द बेस्ट गाइज. टेक्निक हमारा बहुत ही अलग है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स. ऑल्सो इट्स अ वेरी इंट्रिकेट काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी फॉलो. मैं आगे आपको दिखाऊंगा हमारे स्टेशन में, बट आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया ऑफ हाउ द प्रोसेस इज. पहले हम ऑर्डर लेते हैं क्लाइंट के. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बैग के ऊपर कोई आर्ट वर्क बनवाना है, क्लाइंट्स ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं. उनको वो 2-3 ऑप्शन दे देंगे हमें, मगर वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी डोंट नो what will look better. We need your kind of judgment. So then we have a team of designers. Our designers work back end and we create few options. वो हम फोटोशॉप करके ऑप्शंस दिखा देते हैं क्लाइंट को. वंस दैट इज अप्रूव, फिर हमारे आर्टिस्ट के पास वो चले जाता है डिजाइन. Then the artist makes a stencil. Stencil is made, by a rough sketch. It looks like a sketch, and once that is the second stage of approval. तो क्लाइंट को अगर लगता है कि थोड़े चेंजेस हैं, वो आर्टिस्ट वहीं पे कर देगा. Once that is approved, then we start with the whole process of the artwork. So the artwork process can range anywhere between 3 days for a very small artwork, taking up to even 20-25 days. And the kind of artwork that we do, we work on small leather goods like wallets, mobile phone cases, to extremely large leather goods like trunks. हमने LV के जो trunks है, बहुत बड़े बड़े trunks है, उन पे भी हमने artwork किया है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत छोटे चीज़ों में करते हैं. वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट. हमने इनफैक्ट कोविड के टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लिया था. हमने किसी के गराज, वीआईपी कस्टमर के गराज को हमने बेसिकली पेंट किया था. हिज गराज हैड 20 कार्स. सो यू कैन इमेजिन हाउ मैसिव दैट गराज वाज. एंड वी डिड द वॉल आर्ट. हम वॉल आर्ट भी करते हैं. सो वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ आर्टिस्ट हु आर क्वालिफाइड टू ओनली डू दैट. तो पूरा गराज हमने किया. दैट प्रोजेक्ट लास्टेड अस अबाउट 2 months. सो नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड आवर स्कोप ऑफ वर्क. बहुत ही इंट्रिकेट काइंड ऑफ काम है हमारा. सो क्या हम यहाँ से विजिट करें आपके प्रोडक्ट्स को, डिजाइन को, एंड बिल्कुल. कैसे प्रोसेस होता है? बिल्कुल. वन बाय वन, सेक्शन वाइज विजिट करते हैं. एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू टेक यू अराउंड.